Hello guys, how are you all? I hopefully believe that you all are quite fine. And over here, I warmly welcome all of you in this video. Students, today we will read a story included in your textbook snapshots. Here, your story is Ranga's marriage, chapter 3. We will discuss about short summary of this story of this chapter, Ranga's marriage, as its title itself refers that the story is about marriage uh, for a protagonist of this story whose name is Ranga in this story. Students, this story has been written by Masti Venkatesh. Venkatesha, we can say Masti Venkatesha Iyengar, who was born on 6 June 1891 in Tamil Nadu, and Venkatesha was died on 1986 in Bangalore, Karnataka. So, Masti Venkatesha Iyengar, he was a well-known writer, story writer of Tamil Nadu who used to write in Kannada, and he also achieved glorious famous award of India in of literature known as Sahitya Academy Award. So he was awarded with Sahitya Academy Award of India. This chapter, Ranga's marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar, is related with custom of marriage in India. So we will discuss about short summary of this chapter, as it has given in your book that Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. ये कहानी रंगा नामक एक प्रोटैगनिस्ट के संदर्भ में है, जो कि फूसाहली गांव के एक अकाउंटेंट का लड़का है। एंड वो गांव में काफ़ी जो रंगा है की स्थिति है बहुत ही अजीब स्थिति है, बहुत ही विचित्र स्थिति है, क्योंकि होसाहली गांव में 10 वर्षों में कोई ऐसा नहीं था जो इंग्लिश सीखने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए गांव से बाहर गया हो। उनमें रंगा एक ऐसा लड़का था, अकाउंटेंट का, गांव के अकाउंटेंट का, जो कि पहली बार इंग्लिश सीखने के लिए, पढ़ने के लिए घर से बाहर गया था। एंड when he returns to his village from the city of Bangalore, वह होसाहली गांव से बैंगलोर के लिए गया था, बेंगलुरु गया था अंग्रेजी सीखने के लिए रंगा। इसलिए वो गांव में सबके लिए कौतूहल से भरा हुआ एक लड़का था, सबसे अलग था। और the crowd meal around his house to see whether he has changed or not. जब रंगा बेंगलोर से इंग्लिश की पढ़ाई करके वापस आता है होसाहली गांव,
तो उसके गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, जानने के लिए कि he has changed, Runga has changed, he has transformed his life or not. It was a wonderful, surprising fact matter for villagers of होशाहली कि लड़का जो बाहर गया हुआ है, जब वो आया है अब बेंगलोर से पढ़ाई करके, इंग्लिश की स्पेशली पढ़ाई करके, whether he has changed or not, it has depicted here by Masti Venkatesh Iyengar. His ideas about marriage are now quite different, or are they? Even his idea about marriage, about customs, about traditional system of marriage has changed, has transformed, or not. It was a curious question among villagers who gathered there to see, to meet, to visit रंगा. सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये कहानी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रंगा जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, प्रोटैगनिस्ट है, उसके संदर्भ में गांव के लोगों का, विलेजर्स का क्या नज़रिया है, ये इस पूरी कहानी में दिखाया गया है. और किस प्रकार रंगा, जो कि वैवाहिक जीवन को लेकर उसकी सोच और उनसे कुछ अलग है, वो किस प्रकार की मैरिज सिस्टम को जानना चाहता है, किस प्रकार के मैरिज सिस्टम में वो इन्वॉल्व होना चाहता है, इट हैज़ गिवन हियर. और ये कहानी ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि किस प्रकार जो भारतीय वैवाहिक पद्धति सिस्टम है, वो वेस्टर्न कल्चर से कैसे डिफरेंट है, किस प्रकार की रिचुअल्स हैं, क्या यहाँ जो तारों नक्षत्रों की जो गणना होती है वो किस प्रकार की है. इट हैज़ गिवन इन दिस स्टोरी. Writer has written in his own style that when you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage, why not Ranganath Viva or Ranganath Vijay? Writer says that when you see this title, when you read this title, then you may ask, or someone may ask, Ranga's marriage, why it cannot be Ranganath Viva? ये ऐसा टाइटल क्यों नहीं हो सकता है. राइटर himself assumed that, well, yes, I know I could have used some other mouth feeling one like Jagannath Vijay or गिरजा कल्याण, लेकिन मैं ऐसा नहीं है. राइटर कहते हैं कि मैं इस टाइटल को अलग भी रख सकता था, लेकिन रंगा मैरिज टाइटल रखने का मेरा जो ट्रिक है वो ये है कि रंगा रत्ना नाम की जो है लड़की से, गर्ल से विवाह करना चाहता है, और फाइनली उसका विवाह रत्ना से होता है. दोनों के नाम की जो ग्रह दशा कुंडली है वो एक नाम है, सेम नाम है. इट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय astrologer also. So student, now we will discuss about the story that Ranga is a boy living in the village of Hosahalli in Mysore, and he goes to Bangalore to receive English medium education. अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है. Upon returning to the village, गांव आने पर ऐसा होता है कि all the villagers flood to his place to notice, to observe, to visit
एनी चेंज इन द बॉय, एनी चेंज इन द रंगा, कि कुछ उसके अंदर परिवर्तन हुआ है नहीं हुआ है, देखने के लिए गांव की भीड़ इकट्ठा हो जाती है. हाउएवर, टू देयर डिसअपॉइंटमेंट, रंगा इज द सेम एज ही वॉज बिफोर. वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड, सॉरी, निराश होते हैं कि रंगा अभी भी वैसा ही है, जैसा गया था वैसा ही वापस आया है. देर इज नो मोर चेंज, इट हैज नॉट बीन सीन बाय देम. ही इवन ग्रीटेड एवरीवन. जब गांव के सारे लोग आते हैं तो उनका जो है रंगा अभिवादन करता है. नमस्कार, नमस्कारम जैसे शब्द का प्रयोग करके अभिवादन करता है. द विलेज of Hosahali is a small village. Writer has expressed his view that Hosahali गांव एक काफ़ी छोटा सा गांव है. This is not even that famous, और ये बहुत अधिक फेमस नहीं है. और after the villagers leave Ranga's house, जब सारे गांव के लोग रंगा के घर से चले जाते हैं, then the narrator stays back at his place to talk with him. Narrator अभी भी वहाँ बैठा है ताकि उसे कुछ पर्टिकुलर जानकारी हो सके रंगा के बारे में. द विलेजर्स लीव रंगा's हाउस, चले जाते हैं. नैरेटर अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं ताकि वह रंगा से कुछ और अधिक बात कर सकें. And finally, they both, Ranga and the narrator of this story, they started talking, and the narrator thought it would be a good idea to find a suitable girl for the Ranga. ऐसा माना जाता है, रंगा भी नौजवान था. राइटर ने सोचा अच्छा टाइम है, बेंगलोर से पढ़ के आ गया है और गांव के अकाउंटेंट का लड़का है, तो चलो इसकी शादी विवाह की भी बात कर ली जाए. राइटर एक सुटेबल गर्ल के बारे में सोचता है फॉर द रंगा, एंड देन द नरेटर डिसाइड्स दैट ही विल श्योरली गेट रंगास मैरिड. फिर वो ये निर्णय लेता है राइटर कि रंगा का शादी वो ज़रूर से ज़रूर करवाएगा किसी सुटेबल गर्ल के साथ. नाउ द नरेटर फील्स दैट द रत्ना एक लड़की है जो कि एक अपने रिलेटिव्स के घर आके रहती है. उससे नरेटर रंगा की शादी का ख्याल अपने मन में लाता है. रत्ना would be a perfect match for Ranga. It has been thought, it has been decided by the narrator. Ratna actually belonged to a big family, and she is an expert in planning musical instruments like veena and harmonium. म्यूजिशियन है रत्ना और म्यूजिक की उसको जानकारी है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की जानकारी है, as veena and harmonium. Thus he narrator decides to call Ratna deliberately when Ranga was visiting. राइटर डिसीजन लेता है कि जब रंगा से उसकी मुलाकात हो तो वहाँ पे किसी न किसी तरीके से रत्ना से उसकी मुलाकात करवाई जाए. Here, upon seeing रत्ना, जब रंगा पहुंचता है वहाँ तो देखता है कि वहाँ पे एक गर्ल जो है बात कर रही होती है. अपन सीइंग रत्ना फर्स्ट टाइम, जब रंगा रत्ना को देखता है, सी मिसमराइज रंगा, and however the narrator plays a game and lies to Ranga that she is married. यहाँ पर जो कि रंगा विवाह के का जो उसका ख्याल था
बहुत ही अलग था, विचित्र था। ये उसकी जो विवाह के संदर्भ में जो उसकी नॉलेज थी, उसमें कहीं न कहीं उसकी जो स्थिति वो बिल्कुल अलग थी। Here we will also discuss about some more fact about this story. And till then, student, thank you all of you. Thanks.